powerful weapon you can use to change the world, as the mind is not a vessel to be filled, but a fire to be ignited. Don't let what you can't do interfere with what you can do. As a person who never makes a mistake, never tried anything new. So this was a new endeavor, a vision of our principal sir, to inculcate a cultural value amongst the junior residents, to instill in them the service for humanity, and to develop a bond between the various departments. We successfully completed this for the last 2 years, and the result was there was no altercation between the doctors and the patients and attendants. Thinking to achieve more newer heights, we again start off with this third GR1 orientation program. I now invite our Master of Ceremony, Dr. Divya Dwivedi, to kindly take over the program. Good afternoon, all the faculty members and my dear students. I welcome you all in this lovely noon and program of its own kind. किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत हम ईश्वर को याद करके और दीप प्रज्वलित करके करते हैं. For this, I invite Principal Sir, SIC Sir, our Chief Guest Ashish Tripathi ji, and all head of the department, GD Yadav Sir, Gautam Sir, thanks esteemed dignitaries for lighting the diya of knowledge and gratitude for our beloved students. कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है. To make our beloved junior doctors acquainted with their first कर्म भूमि, that is GSVM Medical College, I invite a passionate and polite faculty, Dr. Parul Singh, Associate Professor, Department of Ophthalmology, to come and kindly deliver your talk. Beside this, she is Secretary of Ophthalmic Society of Kanpur. Thank you so much, ma'am. A warm regards to our chief guest for today, editor of Hindustan Times, Mr. Ashish Tripathi sir, Dr. Sanjay Kala sir, our dynamic principal, and all the HODs and faculty, and all the residents, and especially the special guests for today are PG's GR1s. So I welcome you all. Thank you so much for this opportunity. Program in charge, Dr. Seema Dwivedi ma'am. So to begin with, we welcome you all in this magnificent college of GSVM Medical College and the LNR Associated Hospitals. This is a small video which is shot by drone by inspiration of our principal sir, which shows the magnificent building, our lush green campus here. And this GSVM Medical College is the largest medical college in the UP state, and we have UG seats of around 250, which has increased from 200 to 250 now, and the PG seats are 140 to 144. So this is the beautiful campus in which you see the building. Now you are seeing the hostels. And we have a big campus which caters all the consultants, and we have UGs and PG hostels, and the staff also lives in. This is a beautiful lawn, green lawn which you see, and so this is the beautiful drone view. Now this is, we seek inspiration from the great freedom fighter Shri Ganesh Shankarji, and we always pay our homage to this great freedom fighter. Now this, as you see in these pictures, so this is basically an intro to all of you so that you become aware and you get to know the great college that you all have joined in. So be seated and enjoy what you have joined in, be proud of that. So this is the lush green college campus in which you can see a very green lawn in front of the building, and we have a staff park as well. And then the next, here you see that a new park has been
opened in front of the boys' hostel, and we also have a very good park in front of the L block also for the faculty which stays there. Thank you so much. So sky is the limit, and our target is to raise the bar further on. Thank you so much. Thank you, Dr. Parul. It was really an informative presentation for our newcomers. One thing I want to tell you, students, all the developments that you have seen just now on the screen in the GSVM have taken place in last 2 to 3 years, and that in the tenure of our respected principal sir. That because of his visionary approach for more and more development of the GSVM. Now I request Dr. Seema Dwivedi ma'am to felicitate our patron and principal sir, Dr. Sanjay Kala sir. वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी भी गिर जाने की. Now I invite the person who characterizes these lines, patron of this unique program, respected Principal Sir, Dr. Sanjay Kala, to encourage the students with his words of blessings. A very good afternoon. सबसे पहले तो मैं आज के मुख्य अतिथि श्री आशीष त्रिपाठी जी का स्वागत करता हूं, और जितने भी हमारे विभागाध्यक्ष हैं, फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रेस और मीडिया के जितने बंधु हैं, सब आप लोगों का दिल से अभिनंदन और अभिवादन करता हूं मैं आपका. जब मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया था 2003 में, और आज में मेरे को लगता है कई लोगों ने, जैसे बच्चे हैं खासकर, उन्होंने वो जर्नी देखी नहीं. जो समय हम लोगों ने उस टाइम, जो पहला कदम था हमारा, जो हमारे बेबी स्टेप्स थे, उससे हाउ फार वी हैव गॉन अहेड. लेकिन कुछ पिक्चर्स जो आज डॉक्टर पारुल ने प्रेजेंट की थी, दिस वाज जस्ट अ टिप ऑफ वर्क, टिप ऑफ आइसबर्ग दैट वी हैव डन. हमने जो काम किए हैं, ठीक है, वो बहुत थोड़ा सा उसका हिस्सा हम दिखा पाए हैं. डॉक्टर पारुल ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन किया, और मैं शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर सीमा द्विवेदी का, who was the creator and founder of this program, and it was her creative idea for which we have started this course. The reason for starting this course was, मैं एक छोटी सी घटना का वर्णन करता हूँ. मैं विशेष तौर से बच्चों का ध्यान चाहूँगा, इसलिए मैं बोल रहा था उनको पहले मत खिलाइए, अब सोएंगे ये, ठीक है. तो कल एक मरीज मेरे ऑफिस में आया, प्रिंसिपल ऑफिस में आकर के. उसने बोला, डॉक्टर साहब एक बात आपसे बोलनी है. मैंने बोला क्या बात? पुराने मरीज हैं मेरे, वो ब्रिजेश पाठक जी के भी शुरू से उनके साथ रहे. कहते सर आपके यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज चल रहा है, सब इतना बढ़िया चल रहा है, मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ. मैंने कहा क्या चाहते हैं? कहते कि आप डॉक्टर से बोलिए ट्रीटमेंट आधा ही दें, हमें पूरा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन बस बोले मीठे से. तो ये एक बड़ी चुभने वाली बात थी कि कहते हैं कि उनकी जो भी मरीज हमारे पास में आता है, उसकी भूख ये होती है कि डॉक्टर भाई जो भी हमारे पास में आता है व्यथित या पीड़ित आता है, हमेशा कष्ट में आता है. तो एज अ रेजिडेंट, जब मैं अपनी बात याद करता हूँ, जब मैं BHU में था, यू नो, वी हैव गॉट द हाईएस्ट ईगोस. जब आप हमारे स्तर पे आएंगे तब आपको लगेगा अरे यार क्या हम बचपना करते थे. लेकिन मैं ये भी कहूँगा, कोई भी अस्पताल बिना रेजिडेंट के नहीं चल सकता. हम लोग तो मुश्किल से 1 या 2 घंटे मरीजों के साथ में रहते हैं, लेकिन हमारे जो रेजिडेंट्स हैं 24 घंटे रहते हैं. एंड आई नो द एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट आवर रेजिडेंट्स आर डूइंग. एनी हॉस्पिटल इज रन बाय द सिस्टर्स, द रेजिडेंट्स एंड पार्टली बाय द कंसल्टेंट्स. लेकिन फिर हम लोग कहाँ पे लैग करते हैं? गाय बगाए हम लोग को अखबारों में सुनने को मिलता है कि झगड़ा हो गया. और एज यूजुअल मैं इसमें वो भी नहीं करूँगा, आई मीन आज प्रेस वाले यहाँ पे हैं तो मेरे को, मैं इसमें बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकूँगा कि हमेशा वी आर द पर्सन हु गेट स्लैप्ड. हम लोग थप्पड़ खाने के लिए हम ही बने होते हैं. इन द सेंस
कई बार हमारी गलती होती है, कई बार तीमारदारों की गलती होती है, लेकिन चाहे गलती किसी की हो, इट इज़ द डॉक्टर हु आर टू बी ब्लेम्ड। तो इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम मरीज या तीमारदारों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने को बदल सकते हैं। तो यही सोच रख करके हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और जो रेजिडेंट्स यहाँ बैठे हैं, कई सारे इस कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, कई सारे बाहर के प्रोडक्ट हैं, मतलब दूसरे कॉलेजेस से आए। अब मैं नहीं जानता आपके कॉलेजेस में क्या सिखाया गया है, लेकिन हाँ, जब तक आप इस कॉलेज में हैं तो यहाँ का एक अलग कल्चर है, अलग तरीका है। और हम लोग प्रदेश में इस वक्त में सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस में एक हैं। आप सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि अभी कल परसों की बात है, मैंने एक रेजिडेंट था, जैसे कि कोई साउथ से आते हैं, यहाँ खान पान डिफरेंट है। तो अब NCC का एक रेजिडेंट था, वो बड़ा परेशान था कि मेरे को वो जो साउथ इंडियन खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे खाने में। दूसरी बात है, उसको लैंग्वेज थी, ही कैन नॉट शेयर हिज लैंग्वेज, उसको हिंदी नहीं आती थी। तो देखिए, ये प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, लेकिन हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। डिस्पाइट हमारे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो साउथ में जाते हैं, बट दे लर्न साउथ इंडियन लैंग्वेज, कन्नड़ा, तमिल, ऑल दिस लैंग्वेजेस, एंड विद आफ्टर 1 year दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट्स। ये प्रॉब्लम तो आपको अपने स्तर पे खत्म करनी है, लेकिन कुछ आपके जो इनहेरेंट हम लोग के अंदर है एज अ डॉक्टर्स, जो हमारे से सोसाइटी ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है तुलनात्मक दृष्टि से बजाय के और लोगों से। अगर सोसाइटी हमें भगवान मानती है तो हमें भगवान की तरह आचरण भी करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमारी सारी फैकल्टी के साथ में हमने एक मीटिंग की थी पिछले साल। ये हमारा 2य वर्ष है जिसमें हमने खासकर फर्स्ट ईयर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मोटा मैं, अगर मुझसे कोई बोले कि क्यों आप ये करा रहे हैं, तो छोले भटूरे के अलावा दूसरा पर्पस ये है कि हाउ यू इंटरेक्ट विद द पेशेंट्स। मोस्ट ऑफ टाइम हमारे झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं, हमारे से इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, लेकिन दे डोंट हैव टाइम टू टॉक टू द पेशेंट्स। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट और स्पीकर बैठे हुए हैं, डॉक्टर गणेश, जिन्होंने खुद क्लासेस ली हैं, एंड ही इज़ अ वेरी गुड ओरेटर और वेरी गुड प्रेजेंटर। अभी आप इनको सुनेंगे तो आप फील करेंगे कि कैसे, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द पेशेंट। आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ज़्यादातर झगड़े इसलिए होते हैं, आप सब करते हैं, सिर्फ बात ही तो नहीं करते हैं। देखिए, सिर्फ बात अगर आप ठीक से कर लें, मरीज की 50% बीमारी खत्म हो जाएगी, 50% ग्रीवियंसेस पेशेंट के जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। खैर, मैं इस टॉपिक का इतना विद्वान नहीं हूँ। मैंने आज एक बहुत ही अच्छे शख्स को आप सबके सामने प्रेजेंट किया, जो पूरे समाज का दर्पण है। हमें मीडिया कहते हैं, मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है या एक समाज का दर्पण है, क्योंकि इनके पास में सब क्राइम की रिपोर्ट भी आती है, मेडिकल की भी आती है, सब जगह की आती है। तो इनको पता, इनके पास में फीडबैक भी जाता है हमारे कॉलेज का। तो इसलिए मैंने, जो एडिटर हैं श्री आशीष त्रिपाठी जी हिंदुस्तान के, तो इस बार मैंने कहा कुछ नया किया जाए। तो इसमें मेरे को डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने आइडिया दिया, क्यों ना हम सर को इन्वाइट करें, जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं हिंदुस्तान के। एंड उन्होंने खुद, वो मेरे पास में, उन्होंने बोला मैं बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं भी मेडिको हूँ, आप भी मेडिको हूँ, कई चीज़ें हम लोग स्किप कर जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि एडिटर साहब जो बात बोलेंगे तो उसमें से कई सारी ऐसी बातें जो शायद हम लोग को भी नहीं मालूम होंगी। इसलिए आज हमें एज ए बतौर चीफ गेस्ट बुलाया है, और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज ही इज़ अ फेस ऑफ द सोसाइटी, मतलब वो समाज का फेस है। तो समाज हमसे क्या चाहता है, क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, वो आज हम आपके मुंह से सुनेंगे। अब मैं बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए मैं सीमा मैडम से बोलूँगा प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, और जितनी भी फैकल्टी हैं और रेजिडेंट्स हैं, सब लोग को मैं चाहता हूँ प्लीज़ हमारे चीफ गेस्ट साहब को ध्यान से सुने, और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से अटेंड करना है आपको, क्योंकि ये आपके जीवन भर मदद करेगा। हमारे टाइम पे कोई होता, आई डिड माई MS फ्रॉम BHU एंड माई UG फ्रॉम आगरा। लेकिन एक बात मैंने जो डिफरेंस देखा कि कहीं पे भी कोई PG ओरिएंटेशन नहीं होता। हम अब जाकर के गवर्नमेंट ने NMC में पोस्ट ग्रेजुएट UG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें हमें एथिकल वैल्यू सिखाई गई। छोटा, बस एक बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। जब हम UG में थे तो हम लोग, हमारे आइडल कौन होते थे भाई? अब आप लोग की जनरेशन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 1980s। हमारे एक बड़े से टीचर आते थे, बड़ी गाड़ी लेकर के, सूट टाई पहन करके, बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी, FRCS, उस वक्त FRCS होता था, अब MRCS कहते हैं उसको।
और FRCS होता था या FRCP होता था, वो आकर के बहुत फ्लुएंटली बहुत अच्छी अंग्रेजी में लेक्चर लेके जाते थे। हम सब ताली बजाते, क्या लेक्चर दिया है, समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन हम तालियां बजाते थे बहुत जोर से, क्या क्यों, बट वी वर अमेज्ड बाय द पर्सनैलिटी, है ना। हम उसने क्या बोला इससे अमेज नहीं हो रहे, हम उसकी पर्सनैलिटी से अमेज हो रहे। वो बाद में बोल के चला जाता था, बच्चों हमारे समझ में नहीं आता था, लेकिन हमारा आइडियल कौन बनते थे, ये लोग बनते थे। लेकिन क्या ये समाज का असली चेहरा थे? नहीं। अब समय आ गया कि हम लोग भी अपने को बदलें समाज के अनुरूप, क्योंकि अब समाज की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ रही हैं, खास करके कोविड के बाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और एक मैं खासकर से डॉक्टर GD यादव साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो आपके PG प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर हैं, PG टीचर एजुकेशन पूरे कोऑर्डिनेटर हैं इसके, और उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो एडिटर साहब बोलेंगे आप उसको ध्यान से सुनिए। Thank you, sir, for your words of encouragement and blessing. It is your benevolence. अग्रजों को सम्मान देना और कनिष्ठों को श्रेय देना, ये विशेषता है प्रिंसिपल सर की। ये सर का विजन और ड्रीम था, जिसे हमारी पूरी GSVM फैमिली ने चरितार्थ किया। एडिटर सर को बुलाने से पहले सर को हम थोड़ा सा और ओरिएंट करना चाहेंगे। ये ओरिएंटेशन PG स्टूडेंट्स का भी है और सर को भी पूरी जानकारी देने का है। पहले तो हम लोगों ने बताया कि हमारे विशेषताएं और उपलब्धियां क्या हैं GSVM मेडिकल कॉलेज की और LLR हॉस्पिटल की। अब ये परिवार कितना बड़ा है GSVM फैमिली, जिसका मीडिया भी एक अभिन्न अंग है और परिवार है, इसके बारे में डॉक्टर शालिनी बताएंगी। और उसके आगे ये PG ओरिएंटेशन क्या है उसके बारे में 5-5 मिनट हम बता करके हम लोग भी, चूँकि आपको बैठ के सुनना चाहेंगे आपके विचारों को। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या, काइंडली कम एंड कंटिन्यू एंड इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट स्पीकर। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। अर्थात गुरु की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति इस भव सागर रूपी संसार से पार नहीं पा सकता, चाहे ब्रह्मा के समान उसमें सृष्टि रचने की क्षमता हो या शंकर के समान प्रलय उत्पन्न करने की क्षमता। सो टू इंट्रोड्यूस आवर ब्रह्म ज्ञानी गुरु टू आवर budding physician and surgeon, I invite a very sincere, sensible and sweet faculty, Dr. Shalini Mohan ma'am. Madam is professor and head of the Department of Ophthalmology, GSVM Medical College. Thank you so much, Dr. Divya, and thank you, Dr. Seema Divedi ma'am, for the opportunity. My gratitude to chief guest of today's program, Shri Ashish Tripathi ji, Principal Sir, all the head of the departments, faculty member and dear students. So just now you saw wonderful presentation of our college, what all facilities are available and what all we are doing under the guidance of Principal Sir. And now you will be seeing the list of faculty members who are actually working, and they will be also inculcating with knowledge and wisdom as you continue and pursue your courses. So as this is our freedom fighter, Shri Ganesh Shankar ji. So now first of all, Department of Anatomy. The students who have already pursued their MBBS from here must be knowing. Head of the department is Dr. Pramod Kumar, and Dr. Suniti Pandey is professor in the department, and there are other professors, Dr. Alka Nagar, Dr. Nidhi Gupta and Dr. Aarti. Department of Physiology is headed by Dr. Jalis Saxena, and other faculty members are also there to infuse you with knowledge and wisdom. Then we have Department of Biochemistry, where Dr. Anand Narayan is heading the department along with other faculty members. Department of Pharmacology, where Dr. Viren Kushwaha is head of the department along with Dr. Pooja Agarwal, Dr. Himanshu and Dr. Pushpendra Pushkar. This is Department of Pathology, who is doing an umpteen number of investigations every day and giving you reports every day. Dr. Mahen Singh is heading the department along with other professors, Dr. Sumalata Verma, Dr. Brumna Khan, Dr. Nilima Verma, Dr. Yogen Verma, Dr. Chainika Kala,
Then we have Associate Professor Dr. Kuldeep Singh, Dr. Jyotsna, Dr. Sunita, Dr. Swapnil and Dr. Neetu Purwar, who are Associate Professors. Thank you, ma'am, for your elaborated presentation. It was really a Herculean task to collect the pictures and information about the faculty. Now I invite a very pretty and perfectionist Associate Professor Obs and Gynae Department, Dr. Pratima Verma, to proceed further with the program. Thank you, Devya ma'am, for these lovely words. अभूतपूर्व नारी शक्ति, जिनकी आसक्ति शिव में ही है उनकी शक्ति, इस JR1 प्रोग्राम, इस JR1 ओरिएंटेशन प्रोग्राम की सूत्रधार प्रोफेसर डॉक्टर सीमा द्विवेदी को मैं मंच पे इस JR1 ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। थैंक यू प्रतिमा फॉर योर लवली वर्ड्स। सूत्रधार प्रिंसिपल सर हैं और ये उनका बुढ़ापन है कि वो अपने कनिष्ठों को पूरा श्रेय देते हैं। इट वॉज अ वॉयज टुगेदर ऑन रफ वाटर्स टू कॉन्कर द ओशन ऑफ नॉलेज एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी by dedication, devotion and teamwork of our faculty and vision of our principal, Dr. Sanjay Kala. Yes, there are armies fighting on the fronts and the boundaries of nation. We the warriors against corona and all pathogens fight and break all the boundaries to save humanity. What a mesmerizing journey which we had last year. I think जो आप सेकेंड ईयर हो गए हैं, अगर वह यहाँ पे हैं तो उन्हें याद आ रहा होगा कैसे सुबह सुबह कॉल आ जाती थी कोऑर्डिनेटर की, जल्दी आओ क्लास शुरू हो गई, अभी 50% बच्चे आए हैं, स्पीकर वहाँ पहले से बैठा, इस टाइप की कॉल, सब अपनी ड्यूटी से सोते जागते उठ के आ जा रहे थे। तो इस जर्नी को हमने इस तरीके से इसमें कंपाइल किया। आई थिंक ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉड इज रिक्वायर्ड हियर। थैंक यू सो मच। विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना त्यजेत विद्या, विद्यार्थिना त्यजेत सुखम। ये हमारे JR1 ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे बिल्कुल सूटेबल बैठता है कि विद्यार्थियों को सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए और सुख की इच्छा करने वालों को विद्या की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसी परिकल्पना को शिरोधार्य मानकर आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसे ही माननीय अतिथिगण हमारे बीच, जो हमारे आज मुख्य अतिथि भी हैं। इनका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगी, इनके जीवन के संघर्ष और इनकी सफलता का। उन्नाव के मोरावा कस्बे में जन्मे आशीष त्रिपाठी जी लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएट इन्होंने किया। इनके पिता शिक्षक एवं लेखक हैं, अतः इनकी साहित्य की प्रति रुचि स्वाभाविक ही थी। इन्होंने पत्रकारिता में अपने 22 वर्षों का योगदान दिया है और विगत 8 वर्षों से वो एडिटर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर है, के एडिटर पद पर कार्यरत हैं। So I am honored and privileged to invite in GSV Medical College premises as chief guest a magnificent and a renowned persona, Mr. Ashish Tripathi ji. Sir, we welcome you. आदरणीय प्रिंसिपल सर, अन्य शिक्षकगण, प्रोफेसर साहबान और इस कॉलेज के नए पुराने बच्चों, तो सबसे पहले कहानी से ही बात शुरू कर ली जाए। अभी प्रोफेसर साहबान ने जो बताया, उसके अलावा भी जो हमको पता है कि आप लोग जब MBBS की पढ़ाई करके आते हैं बतौर JR, स्पेशलिटी की पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं, तो हमको ये अच्छी तरह पता है कि आप में से तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्रश करने का भी टाइम नहीं होता, आपकी जेब में माउथ फ्रेशनर होता है। आप में से तमाम लोग ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते और करीब 6 महीने या 1 साल तक ऐसे ही काम करने की वजह से आप में कुपोषण पैदा होता है, आप खुद बीमार हो जाते हैं, लेकिन आप अपने काम से नहीं हिलते, आप अपना काम पूरा करते हैं और आप फौज के अनुशासन की तरह काम करते हैं।
प्रोफेसर साहब JR3 को कुछ बताते हैं, वो JR2 को कुछ बताता है, वो JR1 को कुछ बताता है, और 1 को वार्ड बॉय से लेकर नर्स तक और BST मेंटेन करने जैसा बाबू का काम भी, रजिस्टर मेंटेन करने जैसा काम भी, और डॉक्टर का काम भी, यानी सब कुछ मल्टीटास्कर के रूप में आप काम करते हैं। और वो भी तब जब आपके ब्रेकफास्ट का कोई समय नहीं होता, आपके लंच का कोई समय नहीं होता, डिनर का कोई समय नहीं होता, नींद का भी कोई समय नहीं होता। अभी मैडम बता रही थी कि विद्यार्थी को सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और सुख इसमें है भी नहीं। आप जो काम आगे करेंगे, आप में से जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे वो जानते होंगे, वरना आप थोड़े दिन बाद समाज की भाषा में कहें तो भुगतेंगे, और यहाँ एक अच्छी भाषा में कहें तो थोड़े दिन बाद आप उसको अनुभव करेंगे। यहाँ पर चारा सिर्फ एक है आपके पास कि आप इसी काम में अपने सुख की कुंजी, चाबी ढूंढ लें। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में तमाम चीजें आई हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होंगी, कुछ चीजें हमने भी पढ़ी और कुछ चीजें हमको लगता है कि शायद ऐसे प्रश्न यक्ष ने किए होंगे। अब हम मान लेते हैं कि यक्ष ने एक प्रश्न किया कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है। तो उसने एक जवाब दिया कि जिस जन्मभूमि में, जिस धरती पर कोई व्यक्ति पैदा हो वहां का राजा बन जाए, ये उसका सबसे बड़ा सुख है। अगला प्रश्न आया कि ये इस धरती का सबसे बड़ा दुख क्या है। बिल्कुल आपके प्रोफेशन को टच करने वाली ये बात है, इसको मिस मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। आपका सामना इन्हीं चीजों से होने जा रहा है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख है किसी व्यक्ति की मां जब दुनिया से चली जाए, वो क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। तमाम लोगों ने इसका अनुभव किया है, हमने भी इसी जमीन पर यह अनुभव किया है, और उस दुख से आप कई बार वाबस्ता होंगे, और दुख कष्ट से भी ज्यादा, अपमान से भी ज्यादा एनर्जी किसी के अंदर पैदा कर सकता है। कोई व्यक्ति अपमानित हो तो उसके अंदर स्वाभाविक ताकत से ज्यादा ताकत आ जाती है, वो ज्यादा वायलेंट होता है। लेकिन जब दुख गहन हो जाए तो दुख की ताकत उस तकलीफ, अपमान, कष्ट, भूख, क्रोध, इन सारी ताकतों को अपने अंदर समेट लेता है, और दुखी व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं होता। और ऐसे जिसके अंदर ऊर्जा का विस्फोट हो रहा हो आंसुओं का, ऐसे व्यक्ति से आपको डील करना है। स्वाभाविक है कि आपको गुस्सा आएगा, आ ही जाता होगा, या आगे आप काम करेंगे तो आएगा। बस ये PPT देखिएगा, और इसमें एक शब्द है, आप जो काम करते हैं वो सेवा है, और सेवा उस तरह है जैसे किसी गाड़ी का बेस मॉडल। उसमें अभी तमाम चीजें, टेप वेप लगता है, बाजा वाजा जिसमें गाना बजता है, बहुत सारी फैंसी लाइट्स होती हैं, बत्तियां, हूटर, ये सब अभी नहीं लगे हैं। बेस मॉडल है, सेवा आप कर रहे हैं, बेस मॉडल। अब इसका श्रृंगार करना है आपको। कार में श्रृंगार की तमाम चीजें होती हैं, लेकिन आपके पास इस सेवा में सिर्फ एक चीज है जो इसका श्रृंगार करती है। अगर आपके पास सब्र भी आ जाए तो आपकी ये बेस मॉडल गाड़ी टॉप मॉडल गाड़ी हो जाती है। और जिन भी डॉक्टर्स आप अपने सीनियर्स में देखेंगे, आपके सीनियर्स में भी अलग अलग तरह के लोग होंगे, चूंकि मनुष्य तो पशुओं में तो वंशानुगत गुण होते हैं, मनुष्यों में वंशानुगत गुण के अलावा भी तमाम अर्जित गुण, प्राकृतिक गुण और वो भी होते हैं। तो आपके सीनियर्स में भी अलग अलग तरह के लोग होंगे, लेकिन आप स्वाभाविक देख सकते हैं कि इसी कैंपस में कोई प्रोफेसर साहब होंगे जिनकी मौजूदगी का भी नोटिस न लिया जाता हो, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी बहुत दूर मौजूदगी का भी बच्चा नोटिस लेता है, उसके साथी नोटिस लेते हैं, उस प्रोफेसर के सीनियर्स भी नोटिस लेते हैं। उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा सात्विक आतंक होता है कि कोई ऐसी वैसी बात न उनके सामने की जा सकती है, न उनके बारे में की जा सकती है। वो आपसे एक अच्छा व्यवहार चाहता है। इस अच्छे व्यवहार को और सब्र को, दो चीजों को आप आगे याद रखेंगे तो ये बड़े काम की चीजें हैं, बहुत काम आएंगी। इसको इस तरह समझिए कि जब अंतरिक्ष की तरफ रॉकेट जाता है तो जब धरती के पास होता है तब आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़ा होता है आकार में, उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार करने की ओर बढ़ता है, उसके तमाम ईंधन भरे हिस्से उससे अलग होते जाते हैं और बेहद जरूरी चीजें उसके पास बचती हैं।
तो व्यक्तिगत क्लैशेस, उसकी खराब टिप्पणी, उसने गाली दे दी, उसने कॉलर पकड़ लिया, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं जो रॉकेट के आसपास उसको वजनदार बनाती हैं, ऊपर नहीं जाने देती। और ये जब अलग हो जाती हैं तो रॉकेट गति पकड़ लेती है। तो ये अच्छा व्यवहार है जो पूरी तरह आपके बस में है। अभी हो सकता है न लगे, आप लोग नौजवान हैं और आपको ये भी लगे कि इनके तो बाल बाल गिर गए यार, ये तो 50 पार के आदमी हैं और ये बता रहे हैं कि गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। आपकी उम्र में जब थे तब बहुत हद तक आप जैसे ही थे और कई बार वो गलतियां हमने भी की होंगी, की ही हैं, जो आप करेंगे। ये सारी कोशिश इसलिए नहीं कि आप गलतियां न करें, आपसे गलतियां होंगी, जीवन है तो गलतियां हैं। ये सारा तंत्र इस बात पर लगा है, इस बात के लिए ये ऊर्जा झोंकी जा रही है कि वो गलतियां कम हो जाएं, हम इनको मिनिमाइज कर लें। और मिनिमाइज कर लेना ही एक अच्छी खासी सफलता है। आपको कुछ दिन बाद ही पता चलेगा कि ज़्यादा गलतियां हो सकती थी। अगर आपने इन सारी चीज़ों को, सीनियर्स की बातों को फॉलो किया तो आपकी तमाम गलतियां बच जाएंगी, बड़ी गलतियां छोटी हो जाएंगी, छोटी गलतियां बिल्कुल हट जाएंगी। आपने बड़े धैर्यपूर्वक सुना, हूटिंग नहीं की। मेडिकल कॉलेज के बच्चे हूटिंग कर देते हैं, डर भी लग रहा था कि आएंगे पता नहीं बात सुने ना सुने, कहें हट जाओ भाई पीपीटी हटा। तो आपने बड़े धैर्य से सुना, आपके सीनियर्स ने भी बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए बड़ा अनुग्रह, बहुत धन्यवाद। और आप सब जब भी मिलना चाहें, हमारा ऑफिस आपके लिए हमेशा खुला है।